Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. So students, we are already continuing with the chapter that is life processes. In the chapter life processes we had dealt with all the introduction of the life processes, and now we are going to deal with our first life process, that is nutrition. In the topic nutrition, we are going to read about the plant nutrition and the animal nutrition. First of all, we are going to read about the types of nutrition. Then about the plant nutrition. Then about the unicellular nutrition. Then about the human digestion, or we can say human nutrition. Students, nutrition is related to the word nutrients. Nutrition is related to the word nutrients. So basically, what is the definition of nutrition? Nutrition की जो definition है, that is taking in of, we can write it up here, nutrition is the process of taking in food or taking up the nutrients, by living organisms. The process of taking up the nutrients by living organisms is known as nutrients. The process of taking up the nutrients from the living organisms for energy production. Basically, what is the purpose of nutrition? अगर purpose of nutrition को देखा जाए तो nutrition is the process of, nutrition जो है वो energy के लिए use होता है. Nutrition provide the base for all the life processes, metabolic life processes. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स के, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिशन वर्ड के पास हमारे पास क्या आया है? एक वर्ड, दैट इज न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, हमने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के बारे में देखा, टेकिंग अप द न्यूट्रिएंट्स. तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. Types of nutrients. ठीक है, nutrients can be categorized into 6 categories. 6 categories. कुछ भी करने से पहले it is very important for us to know about the types of nutrients. जो सारे types हैं
उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आप अच्छे से इसको आगे अप्लाई कर सको. सो लेट अस रीड. फर्स्ट टाइप इज कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड टाइप इज, फर्स्ट टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स. यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? CH. Well, it's okay. You don't need to go into the chemical structure because you are in 10th class. अभी कभी कई बार क्या आ जाता है कि chemical structure को अगर हम रेफर करने लग जाते हैं तो confusion हो जाती है बहुत ज़्यादा. So we are going to deal with it later whenever needed. In higher classes तो आप पढ़ने ही वाले हो इसके बारे में. 11th में आपको डाइजेशन का चैप्टर, बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर पूरे डिटेल में आ रहा है जिसमें सिर्फ यही सब चीज़ें होती हैं. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स. ठीक है. These are the first main 3 components of the food. Next is minerals, vitamins and water. Minerals, vitamin and water, and at last we are going to have the roughage. Roughage. ठीक है. Roughage is also important. These are the 6 categories of nutrients and roughage का क्या function है ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं. First of all, what is a balanced diet? The diet मतलब या meal, we can write diet or meal. The diet, what is diet basically? Combination of foods. The diet or meal that consists of all the 6 nutrients in the appropriate amount as needed by the body. This kind of diet is known as balanced diet. This kind of diet is known as balanced diet. तो बैलेंस डाइट के अंदर वी कैन हैव कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में वी हैव होल ग्रेन फूड. होल ग्रेन फूड. होल ग्रेन फूड में फॉर एग्जांपल व्हीट राइस. इन प्रोटीन्स we have pulses. स्टूडेंट्स ये मैं आपको डिटेल में क्यों करवा रही हूँ क्योंकि अभी आप एज देखो अपनी, यू आर इन 10th क्लास एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट बेसिकली इज नीडेड बाय योर, व्हाट इज द नीड ऑफ योर एज. ठीक है. आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी की क्या नीड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना. इस चीज़ को मैं डिटेल में इसीलिए समझा रही हूँ. पढ़ाई सिर्फ रटना या देखना या याद करना नहीं होता, उसको समझना भी होता है. और ये एडोलेसेंस वाले चैप्टर में मतलब कि जब आप करोगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हाउ टू टेक केयर ऑफ एडोलेसेंट्स, एडोलेसेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसमें बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बैलेंस डाइट का पॉइंट आता है दैट एडोलेसेंट्स मस्ट हैव बैलेंस डाइट टू कीप देयर प्रॉब्लम्स अवे फ्रॉम देमसेल्व्स. बॉडी प्रॉब्लम्स या मेंटल जो स्ट्रेस वगैरह की प्रॉब्लम भी है बैलेंस डाइट से दूर हो जाती है. अगर आपको पता होगा कि बैलेंस डाइट होती क्या है, बैलेंस डाइट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी प्रॉपरली, फिर तो आप कर लोगे. अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे. सो इट इज़ नॉर्मल. कार्बोहाइड्रेट्स
कि है जो हमारे पास खाना, दैट इज होल ग्रेन फूड लाइक व्हीट एंड राइस। देन प्रोटीन्स के बाद हमारे पल्सेस आ गए, पल्सेस मतलब दाल, जो भी सारी हमारी दाल आती है ये प्रोटीन्स में आती है। देन द फैट्स, फैट्स पार्ट के लिए बटर एंड घी, ठीक है। देन हमारे मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या आ गए, फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देन आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द स्पाइसेस, स्पाइसेस के अंदर भी क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स स्टूडेंट्स होते क्या है, जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम, जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, ऑल्सो द सोडियम, दीज आर द मिनरल्स। ये बेसिकली मेटल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को थोड़े से अमाउंट में चाहिए होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ। सो दीज आर द मिनरल्स। एंड एट लास्ट वाइटामिन्स, वाइटामिन्स के अंदर भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। वाइटामिन्स, वाइटामिन्स की नीड भी कौन कंप्लीट करता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड एंड वॉलनट एंड अदर्स, दे कंप्लीट द नीड फॉर विटामिन ई, वो विटामिन ई की नीड को पूरी करते हैं। जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं विटामिन ए की कमी को पूरी करते हैं। विटामिन बी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन different fruits. Then vitamin C is present in the citrus fruit, citrus vegetable, lemon, orange and we can also talk about kiwi fruits like that, है ना। तो vitamins and तो एक हमारी जो बैलेंस डाइट है उसको बना के देखते हैं। बैलेंस डाइट के अंदर हमारे क्या कुछ होना चाहिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड हैव रोटी, देन वी शुड हैव दाल, देन वी शुड हैव वेजिटेबल, then we should have ghee, ghee on the roti or in the dal and vegetable, ghee on the roti or in the dal and vegetable. Then next we should have minerals, minerals हमें vegetables और इसमें मिल जाएंगे। And then we should have curd, we should have roughage, and we can also have some sweet, स्वीट कुछ खा सकते हैं हम, लंच के बाद खा सकते हैं या डिनर के बाद खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वीट आप हर मील के बाद खाओ। स्वीट्स क्या करते हैं, हमें नुकसान भी करते हैं, हमारे टीथ के अंदर कैविटी भी क्रिएट कर देते हैं जो स्वीट्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स द एक्सेस ऑफ स्वीट कॉजेस ओबेसिटी। सो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में करवा दिया बैलेंस डाइट। स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज। रफेज हेल्प इन द बॉवल मूवमेंट, बॉवल मूवमेंट। एंड वाटर एंड हाइड्रेटेड फूड्स जो हैं, ठीक है, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। पानी हम फूड के साथ खाएं पिए ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, जब व्हेन यू फील अनईजी वाइल ईटिंग द फूड यू कैन हैव वाटर, लेकिन पानी आपको फूड्स के बाद कम लेना चाहिए, फूड से पहले लेना चाहिए आपको, या फिर नॉर्मली आपको पानी पीते रहना चाहिए। क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, ब्लड का जो वी कैन टॉक अबाउट कि मेजर पार्ट 40% से 50% तक जो पार्ट है हमारा वो वाटर का बना है, सिर्फ वाटर का, ठीक है। तो बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ही अच्छा सोर्स है। मोरओवर पानी ज़्यादा पिएंगे तो नाइट्रोजनस वेस्टेज स्वेट के थ्रू जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होगा। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट द बैलेंस डाइट। नाउ लेट अस कम टू द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
of nutrition is autotrophic nutrition. Then next type of nutrition is heterotrophic nutrition. First type of nutrition is autotrophic nutrition, next type of nutrition is heterotrophic nutrition. तो students, autotrophic nutrition basically होता क्या है? Auto means self. Auto means self. Trophic, बेसिकली ट्रॉपिज्म हम मूवमेंट को बोलते हैं, तो सेल्फ जो भी फूड मटेरियल बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, हेटेरो मीन अदर. Trophic word is derived from food. So autotrophism के अंदर basically होता क्या है? Autotrophism के अंदर दो categories आ जाती हैं. First one is the chemotrophism and next method is the phototropism. अपना खाना खुद लेते हैं, कोई और उनको नहीं देता, तो दैट इज द ऑटोट्रॉफिज्म. एंड केमोट्रॉफिज्म मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे टेक देयर फूड फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज हेटरोट्रॉपिज्म. तो हेटरोट्रॉपिज्म के टाइप्स हैं पैरासिटिज्म, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सॉरी parasitism, saprotropism and holozoic nutrition. This is the holozoic nutrition. Now students, we have to talk about the थ्री कैटेगरीज ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन. जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो भी फर्दर थ्री टाइप्स का होता है. द हर्बीवोर्स, द कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. तो देखो, ऑटोट्रॉपिज्म में ऑटो मीन्स सेल्फ, द ऑर्गेनिज्म that prepares their food on their own, prepares their own food. This is known as autotropism. अब autotropism एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स उनको. This process is a combination process. जो autotropism का प्रोसेस है, I should write it up here. ऑटोट्रॉपिज्म मतलब केमोट्रॉपिज्म एंड हेटरोट्रॉपिज्म. दैट इज केमोट्रॉपिज्म एंड हेटेरोट्रॉपिज्म. is a combination reaction, needs energy. It needs energy. कोई भी रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कुछ भी है, दैट नीड्स एनर्जी. So it needs energy. Chemotropism and heterotropism is a chemotropism and photoautotropism. Photoautotropism is a
कॉम्बिनेशन रिएक्शन इट नीड्स एनर्जी। अब ये एनर्जी उनको किसी भी टाइप से मिल सकती है, दे कैन गेट फ्रॉम अ केमिकल if the energy that is taken for the preparation of food is some chemical that is known as chemotropism। अगर वो एनर्जी is from light, that is known as phototropism। ठीक है, अगर किसी केमिकल से मिल रही है that is the chemotropism, and अगर किसी अगर light is the source of energy, thus that kind of tropism, that kind of nutrition is known as phototropism। Now let us write the definition of first of all we are having chemotropism, and then we are having photoautotropism। So students, chemo means chemical, ठीक है, the energy that is the energy, or we can say the raw materials for the food production gets from chemical। This kind of tropism, this kind of autotropism, this kind of autotropism is known as chemoautotropism। Then photoautotropism, इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। Then is photoautotropism। The word photo means light, thus the kind of tropism that is the kind of nutrition that uses light as a form of energy these organisms are known as phototrophs। The raw material for photoautotropism is inorganic substances and energy is driven from
energy is driven from light. ठीक है students? So that was all about autotrophism. In the next class we are going to start from the heterotrophic nutrition. So उससे पहले let us have a revision about that what is photoautotropism. The word photo means light. Thus the kind of nutrition that uses light as form of energy, these are known as phototrophs. Phototrophs किसको बोलते हैं? They produce the food with the help of photosynthesis. Photosynthesis is the procedure. Photosynthesis is the procedure with the help of which these organisms produce food. ठीक है, photosynthesis. Raw materials for this is inorganic substances. Inorganic substances like carbon dioxide and water, and जो भी energy इनको food बनाने के लिए चाहिए that is taken up from light. ठीक है, and chemoautotropism is found in certain bacteria. These bacteria are purple sulfur bacteria and others. Okay students, so that was all about today's class, today's lecture. आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन की इंट्रोडक्शन को किया, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन को किया, देन वी हैड रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देन हमने बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, बैलेंस डाइट के सारे कंपोनेंट्स अच्छे से देखे एंड टाइप ऑफ बैलेंस डाइट क्या हो सकती है, सो दैट यू एडोलेसेंट्स कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड देन वी हैव रेड अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देख लेते हैं हमने, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, उसकी बेसिक कैटेगरीज, एंड इन डिटेल वी हैड डेल अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. कल से हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डील विद द डेफिनेशन ऑफ पैरासिटिज्म एंड सेप्रोट्रॉपिज्म. पैरासिटिज्म एंड सेप्रोट्रॉपिज्म के बाद हम करने वाले हैं दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हमारा आएगा अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम एंड देन न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक न्यूट्रिशन इन द लाइफ प्रोसेस चैप्टर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.